For the first time, Sapurji Palanji Group has openly challenged the Tata Trust, demanding that Tata Sons should be listed in the stock market. The Sapurji Palanji Group holds 18.5% stake in Tata Sons, the holding company of Tata Operating Companies, and it is also the second largest shareholder in Tata Sons after Tata Trust. The SP Group says it's not about money, it's about governance, fairness, and 1.2 crore shareholders who deserves transparency. The RBI also wants compliance from Tata Sons, which is classified as an upper layer NBFC in its guidelines. But some of the trustees, it seems, wants to protect the opaque structure where Tata Trust controls Tata Sons, the holding company, and the holding company in turn controls the operating company. But the clock is fast ticking towards the 2025 listing deadline set by the RBI for this upper layer NBFC. In this video, we are diving deep into the powerhouse that controls India's biggest companies, the Tata Sons. सबसे पहले समझेंगे टाटा सन की असली वैल्यू क्या होनी चाहिए। 394 कंपनीज एक ही होल्डिंग पावर हाउस के अंदर ये पूरा एम्पायर कैसे ऑपरेट करता है हम जानेंगे। फिर देखेंगे टाटा सन्स के प्रॉफिट क्यों गिरे 2025 में। रेवेन्यू तो रिकॉर्ड हाई था, लेकिन बॉटम लाइन ने सबको सरप्राइज कर दिया। और आखिर में हम एक्सप्लोर करेंगे टाटा सन्स की नई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज FY25 और आने वाले सालों के लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, डिजिटल इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विसेज, किन सेक्टर्स में टाटा ग्रुप अपना अगला डिकेड बेट कर रहा है वो समझेंगे। इफ यू वुड लाइक ए कॉपी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, प्लीज शेयर योर ईमेल आईडी इन द कमेंट्स बिलो। नाउ लेट्स फर्स्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। What should be the valuation of Tata Sons? Spark Capital, has estimated the valuation around 96 billion US dollar. So this comes out to be around between 8 to 9 lakh crore. And they have taken all the listed companies, and there are a lot of unlisted companies, so they have included the unlisted companies also, possibly with a lower discount, because most of the listed companies Tata has a stake ranging from 30% to 70%. Now if you look at a parameter of market cap, the listed companies market cap, if that is a criteria of valuing Tata Sons, then it comes out to be around 9.76, and they have taken 40% holding company discount, because again in many companies Tata Sons has less than 50%. So this the total value is 16.28, and then they have taken 40 to 60% discount to that because of the holding company, and it comes out to be around 9.76 lakh crore. Now with unlisted, it is around 9.8 lakh crore. And if you take Tata Capital stake value that has recently gone public, so that market cap comes out to be around 95 to 98 thousand crore. So this is just one business where they have 93% stake. So aggregate listed investment 15.8 lakh crore. सो टोटल इन्वेस्टमेंट हम देखें लिस्टेड स्पेस में तो वो 15 लाख करोड़ के करीब आता है। यहाँ पर होल्डिंग कंपनीज डिस्काउंट इज की। टाटा सन के पास कई टाटा कंपनी में हिस्सेदारी है, लेकिन क्योंकि वो पूरा कंट्रोल नहीं रखते और स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए एक्सपर्ट वैल्यूएशन में डिस्काउंट लगाते हैं। यूजुअली ये डिस्काउंट 40 से 60% तक होता है। सो अलग अलग रिपोर्ट में आप देखेंगे कि अलग अलग डिस्काउंट का परसेंटेज लिया गया है। अनलिस्टेड एसेट्स आर लेस ट्रांसपेरेंट। सो टाटा सन्स की कई कंपनीज अभी अनलिस्टेड हैं, जैसे ईवीज में हैं, सेमीकंडक्टर में हैं, जैसे कई बेट्स हैं। इनकी वैल्यू लगाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये फ्यूचर पर डिपेंड करती है, इसलिए अलग अलग एक्सपर्ट्स के एस्टिमेट काफी अलग अलग आते हैं। थर्ड इज द डिपेंडेंस ऑन लिस्टेड इन्वेस्टमेंट। टाटा सन की कुल वैल्यू का बड़ा हिस्सा लिस्टेड कंपनी से आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, जैसे TCS। इसलिए जब इन कंपनियों के शेयर प्राइस ऊपर नीचे होते हैं तो टाटा सन की वैल्यूएशन भी उसी के साथ बदल जाती है। अनदर इशू इज द रेगुलेटरी एंड मैंडेटरी लिस्टिंग इम्प्लीकेशन। RBI ने टाटा सन को अपर लेयर NBFC के तौर पर क्लासिफाई किया है, और कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसका मतलब है कि कंपनी को एक तय समय सीमा में लिस्ट होना पड़ेगा। इसी वजह से हाल के कई दिनों में वैल्यूएशन और स्पेकुलेशन रिपोर्ट सामने आई है। वैल्यूएशन का फाइनल नंबर इस बात पर बहुत डिपेंड करता है कि आप कौन से मल्टीपल, जैसे प्राइस टू बुक ले रहे हो या प्राइस टू अर्निंग ले रहे हो, और डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वैल्यूएशन आपको इधर से जरा सी चेंज दिखेगी हर जगह, खासकर होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट में वैल्यूएशन को
1 से 1.5 लाख करोड़ तक बदल सकता है। इस चार्ट से समझते हैं द टाटा सन्स होल्डिंग इन सम ऑफ द कंपनी। नाउ TCS इफ यू सी दे होल्ड 72%, टाइटन में 25% है, टाटा स्टील में 33% है, टाटा कैपिटल 97%। नाउ विथ IPO लिस्टिंग दिस में गो डाउन। टाटा प्रोजेक्ट्स में 73% है, इंटरनेशनल में 67, एंड एयर इंडिया विच इज़ अ रिसेंट बाय टाटा सन्स हैज a stake of 74%। लेकिन यही कंपनी नहीं है टाटा सन्स के अंदर, ये एक स्नैपशॉट दिया है सम मेजर ब्रांड्स और नेम्स का आपके लिए। सो टाटा सन रिमेन्स अ डाइवर्सिफाइड होल्डिंग कंपनी कंट्रोलिंग और significantly influencing over 350 Tata entities spanning over every major sector of the Indian economy. Tata Group companies under Tata Sons 394 entities, 323 सब्सिडरीज हैं और 39 एसोसिएट्स हैं और 32 JVs हैं, तो क्लोज टू 400 एंटिटीज। मेजर इक्विटी होल्डिंग जैसे मैंने आपको बताया, TCS, टाटा कैपिटल, टाटा प्रोजेक्ट्स, एयर इंडिया, टाटा AIG, टाटा AIA, टाटा डिजिटल, टाटा एडवांस सिस्टम, सो ये मेजर होल्डिंग वाली कंपनीज हैं। अब आते हैं टाटा सन की कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस इन द लास्ट 6 ईयर्स। तो अगर हम ये देखें तो 2.43 लाख करोड़, 3.10 ह्यूज जंप, देन 4.15 लाख करोड़, देन 4.76 lakh crore, and then 4.92 lakh crore. So if you see the consolidated revenue, which includes operating companies, the revenue has been on the rise. Now if you take the PAT, 19,000 crore, 40, gone down 28, then again gone up 49, then gone down 4985. So the profits have gone down in FY 25 period. So let's know the reason for this fall. So जैसा कि आपने देखा, स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन, वीक बॉटम लाइन, बट नेट प्रॉफिट ड्रॉप जो हुआ है 49,000 करोड़ से 40,985 करोड़, ये गिरावट बिजनेस स्लो डाउन की वजह से नहीं थी, बल्कि अकाउंटिंग चेंजेस और कॉस्ट स्ट्रक्चर और कॉस्ट प्रेशर की वजह से आई थी। वन टाइम गेन मिसिंग, पिछले सालों में नंबर्स इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए थे क्योंकि स्पेशल इन्वेस्टमेंट गेन मिले थे, लेकिन इस साल FY 25 में वो एक्स्ट्रा गेन गायब हो गए। एंड थर्ड एंड फाइनल इज द राइजिंग कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। ग्रुप कंपनीज को इस साल रॉ मटेरियल, एनर्जी और बोराइंग कॉस्ट ज़्यादा चुकाने पड़े, और ग्लोबल बिजनेसेस जैसे JLR और टाटा स्टील पर कमोडिटी प्राइसेस और करेंसी रेट के उतार चढ़ाव का असर पड़ा। सो ये रीजंस हैं कंपनी की परफॉर्मेंस नीचे जाने की। नाउ लेट्स लुक एट टाटा सन्स इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज इन FY 25 एंड बियॉन्ड। अगर हम देखें, बहुत हाई फोकस है इलेक्ट्रिक मोबिलिटीज एंड बैटरीज, leading India's EV revolution with significant investment focus. So सबसे बड़ा अगर आप बोलो टाटा सन कहाँ पर नजर रख रहा है, वो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड बैटरी। दिस इज वेयर टाटा सन इज बेटिंग बिग। EVs हैं, बैटरी टेक है, एंड एनर्जी स्टोरेज है अंडर टाटा मोटर्स। द फोकस लीडरशिप इन इंडियाज कीन मोबिलिटी रिवोल्यूशन, ये एक बड़ा थीम है टाटा सन्स के साथ। सेकेंड अगर एरिया हम देखें हाई स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस का, तो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज, building sustainable capacity with high strategic importance, and that's is the second big area of focus. And these are traditional strength. Tata Steel देखें, Tata Power देखें, Tata Projects देखें, already large scale and capital heavy. So the focus is on efficiency, decarbonization and green transition rather than expansion. Then comes to low strategic importance, but yes, is on the priority list. So first is the digital ecosystem, creating a unified digital platform with high investment focus. So that's the third area of focus for the Tata Sun. The digital, as we know, is still experimental in terms of profitability, but Tata Sun sees potential for group synergy through Tata Neo and data driven services, hence a high investment push. And finally is the financial services, expanding in retail lending with low strategic importance. So यहाँ पर insurance, NBFC, life, general, housing, finance, so काफ़ी एरिया में financial services areas में operating company काम कर रही है. Now let's understand the challenges in these 4 areas, which is very important to understand for the future course of action for Tata Sons. Electric mobility and batteries अगर हम देखें, so EV adoption अभी भी गवर्नमेंट incentives, बैटरी टेक और रॉ मटेरियल प्राइसेस पर डिपेंड करता है.
अगर ये बेट सफल होती है तो टाटा आने वाले डिकेड्स तक इंडिया की क्लीन मोबिलिटी स्पेस में लीड कर सकता है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्री, ये टाटा ग्रुप की ट्रेडिशनल ताकत है, जैसे टाटा स्टील और टाटा पोर्ट मैंने पहले कहा, टाटा पावर। अब फोकस एक्सपेंशन से सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ग्रीन स्टील, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में। चुनौती है कैपिटल इंटेंसिटी और कार्बन ट्रांजिशन कॉस्ट को बैलेंस कर। थर्ड, डिजिटल फ्रंट में टाटा डिजिटल और टाटा न्यू ने ग्रुप के कंज्यूमर टेक की दुनिया में लाया है। सो इन्वेस्टमेंट हाई है पर रिटर्न्स अभी अनसर्टेन है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे एजाइल प्लेयर में मुकाबले में टाटा एक ऐसा इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम बना रहा है जो उसके सारे बिजनेसेस को जोड़ सके। एंड फाइनली इन द फाइनेंशियल सर्विसेज, ये टाटा ग्रुप का स्टेबल पिलर है। टाटा कैपिटल, टाटा एआईए, टाटा एआईजी के साथ उनकी पार्टनरशिप है। टाटा कैपिटल का भी आईपीओ खत्म हुआ है और लिस्टिंग भी ऑलमोस्ट ऑफर प्राइस के बराबर हुई है। रिस्क सिर्फ इतना है, रेगुलेटरी एक्सपोजर और कैपिटल एडिक्वेसी बनाए रखना, जैसे जैसे लेंडिंग बुक आगे बढ़ती है। द डिबेट ओवर टाटा सन्स लिस्टिंग इज नॉट जस्ट रेगुलेटरी, इट्स ए क्रॉसरोड्स between tradition and transparency. With several Tata Trust trustees now open to revisiting the private-only stance of Tata Sons, the biggest barrier to a listing may quietly be falling. नोएल टाटा का फैमिली कनेक्शन सापुरजी पालनजी ग्रुप से है, जो टाटा सन्स का सबसे बड़ा प्राइवेट शेयर होल्डर भी है। इस रिश्ते से एक तरह की साइलेंट अंडरस्टैंडिंग और इंटरनल कंसेंसस की संभावना बढ़ जाती है। Yet Tata Sons continues to seek a waiver from RBI's upper layer NBFC rule, insisting it isn't a conventional lender. And so far, the company has made no preparation, no iBanker, no filing with SEBI, suggesting it may still be playing for time or awaiting regulatory relaxation. And if you are considering investing in any Tata Group company, do consult your financial advisor.